Hello everyone, welcome to my channel Starbird Edu Point. Here I am with the new video that is the second part of the chapter Physical and Chemical Change. So let's see what is in the next slide. Okay, so in the next slide we can see here it is the topics are given that we will cover in this video. Okay, so there is a only topic that we are going to cover in this video, that is some common chemical changes, and that this topic included rusting of iron, browning of fruits, and reaction between vinegar and baking soda. So here we will discuss about these three topics, okay, which are included in this, which are the some common chemical changes. Okay, so let's see. We will start with the rusting of iron. Here you can see there are two images that are showing there are some objects are given that are having rusting. They are having a brownish reddish substance over there. That means this is the rust. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इफ दे आर एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर, actually moisture is present in the air, so we can say only if iron objects are exposed to air that can be rusted. ये क्या है, इनमें रस्टिंग हो सकती है बिकॉज इन द एयर water vapors and oxygen are present and both are necessary for the rusting of iron. And rusting of iron is a substance that deposit over the iron objects. Okay, and the rusting, yeah, we can say rust weakens the iron objects. ये क्या करता है, आयरन ऑब्जेक्ट्स को वीक कर देता है, उसकी प्रॉपर्टीज में लॉस हो जाता है. ठीक है, और जो आयरन ये रस्ट होता है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कवर हो जाता है. अब अगर आप इसको रिमूव भी कर देंगे उसके बाद भी ये इस पे लग सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे कि क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स. ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आपका आयरन ऑब्जेक्ट जो होगा रस्टिंग के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देंगे. ठीक है, एक ब्राउनिश रेडिश जो लेयर होगी वो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बन जाएगी. ठीक है, सो here we will discuss what is rusting of iron. Iron objects like iron nails, iron pipes, iron grills, iron railings, these things are made up of iron, and when they kept in moist air, okay, moist air for a few days, so get covered with the brown powdery substance called rust. This process is called rusting of iron. Actually in the monsoon season air is having lots of moisture because of water vapors are air is coming from the seaside. Okay, सो अगर आप रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन में एयर में वाटर कंटेंट या वाटर वेपर या मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, लेकिन अगर आप विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में एयर थोड़ी ड्राई होती है. तो आप समझ सकते हैं कि विंटर्स के कंपैरेटिवली अगर आप बात करें मॉनसून सीजन की, तो मॉनसून सीजन में जो आपके आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो जल्दी रस्ट आ जाती है उनपे. ठीक है, उन पे रस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है. एक ब्राउनी रेडिश सब्सटेंस, फ्लेकी सब्सटेंस होता है जो उसके ऊपर आ जाता है. ठीक है, तो यही आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है. जो ब्राउनी सब्सटेंस है वो क्या है, रस्ट है, और ये प्रोसेस पूरा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन. सो now we will discuss about the conditions necessary for rusting of iron. Here
there are two conditions are necessary for the rusting of iron. First is presence of oxygen. Okay, oxygen gas की presence होनी चाहिए. And next is presence of water, or we can say water vapor, that is also known as moisture. Okay, so these two conditions are necessary for the rusting of iron. In the next slide, we will see how these uh, conditions are necessary for the rusting of iron. Okay, how they are, these two things are responsible for rusting of iron. So here we will understand through an activity. Okay, so there are three test tubes that we have taken for the activity. In first test tube, you can see one thing is similar in all these three test tube. We have taken one iron nail in each test tube. Okay, so in each test tube, one iron nail is with different substances. Okay, in the first test tube A, we can see here it is a water, ठीक है, एंड एयर. एयर आपको यहां से मिल रही है टेस्ट ट्यूब में, ऊपर जो आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा है यहाँ पर एयर आपकी प्रेजेंट है. उसके बाद यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है, और जो आयरन नेल है ये इतना वाटर में डूबा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब, इन द टेस्ट ट्यूब बी we are having a iron nail in the boiled water. We have kept the iron nail in the boiled water, and over the boiled water we have taken a layer of oil. आपको पता है ऑयल जो होता है अगर आप वाटर में डालेंगे तो ये ऊपर आ जाता है और वाटर के ऊपर एक लेयर के रूप में डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कोई ऑयल लेंगे, कोई भी आप सिंपल ऑयल जो घर में यूज होता है वो ले सकते हैं. ठीक है, तो आप जब ऑयल डालेंगे तो इसकी एक ऊपर लेयर बन जाएगी. ठीक है, और ये लेयर क्या करेगी, किसी भी चीज को ऊपर से बाहर से एंटर नहीं होने देगी. ठीक है, दिस इज अ restriction for entering any other object, or we can say any gas also. So in the test tube C, we have taken a iron nail with anhydrous CaCl2. यहाँ पर अलग क्या है आपका CaCl2. एक्चुअली CaCl2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. anhydrous means it is a substance that absorb all the moisture that is present around this substance. यहाँ पर जो आपने CaCl2 लिया है, इसके जो आसपास जितना भी, यानी कि अब आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया है तो टेस्ट ट्यूब में इसके आसपास यहाँ पर जो है जितना भी आपके एयर में मॉइस्चर होगा वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर सोख लेगा. ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्राई एयर, यानी कि there is no presence of moisture in the air. ओके, तो अब इसके बाद इफेक्ट क्या होता है, जब हमने ये आयरन नेल्स को तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखा है तो इसका इफेक्ट क्या होता है. यहाँ पर आपने देखा बॉइल्ड वाटर. बॉइल्ड वाटर मीन्स वाटर दैट इज नॉट हैविंग ऑक्सीजन इन इट. इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब ए में जो आपका आयरन नेल है, इसके पास वाटर भी है, एयर भी है. एयर भी है यानी कि इस एयर में ऑक्सीजन भी, यानी कि वाटर यानी मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं. तो आपने क्या देखा, रस्टेड नेल, यानी कि दिस आयरन नेल इज हैविंग रस्ट. ओके, यहाँ पर इस आयरन नेल के ऊपर क्या हो गया, रस्ट हो गया है, यानी कि डिपोजिशन ऑफ रस्ट, यानी कि यहाँ पर जो है रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस हुआ है. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑयल की लेयर है इसने एक रेस्ट्रिक्शन कर दिया है कि ऊपर से ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, और बॉइल्ड वाटर है इसलिए ऑक्सीजन पहले ही एब्सेंट है इसमें. ठीक है, तो यहाँ पर इसको वाटर तो मिल रहा है यानी मॉइस्चर तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. ठीक है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ दिस ऑयल लेयर. ओके, तो यहाँ पर एक चीज की एब्सेंस है, क्या, ऑक्सीजन की. ओके, लेट्स सी इन द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब. इन द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब एयर इज प्रेजेंट. ओके, अब कह सकते हैं एयर प्रेजेंट है यानी कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट
क्या हुआ, CaCl2 के साथ रखा है, यानी कि इसने सारा मॉइस्चर इसके अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है. सो देयर इज नो प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर और वी कैन से वाटर वेपर्स और वी कैन से वाटर कंटेंट, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में वाटर कंटेंट नहीं है. क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन तो है लेकिन वाटर कंटेंट नहीं है, यानी कि यहाँ और दोनों कंडीशंस में से इन दोनों के साथ क्या है, एक एक चीज की एब्सेंस है. यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है यानी कि O2, ठीक है, माउस के साथ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. ये क्या है, O2 है, यहाँ पर O2 की एब्सेंस है और यहाँ पर मॉइस्चर यानी वाटर कंटेंट की एब्सेंस है. तो आपने देखा कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नेल है इसमें रस्टिंग नहीं हुई है, यानी कि प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन हैज नॉट अकर हियर इन these two test tubes. Okay, दैट प्रूव्स, और इसमें क्या हुआ है, टेस्ट ट्यूब ए में अब ऑक्सीजन भी इसको मिल रही है और इसको वाटर भी मिल रहा है, मॉइस्चर भी मिल रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर दोनों चीजें मिली हैं जिसकी वजह से इसमें रस्टिंग हो गई है. सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट द two conditions means presence of oxygen and presence of water or moisture is necessary for the rusting of iron. आई होप इस एक्टिविटी के थ्रू आपको रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस या फिर उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस आपको अच्छे से समझ आई होंगी और आपको याद भी रहेंगी. ठीक है, सो नाउ in this slide we are just seeing there it is a given chemical equation for the rusting of iron. एक्चुअली अगर कहा जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन का एक केमिकल इक्वेशन बताइए तो ये होगा आपका, क्या होगा, Fe means iron, O2 means oxygen और H2O water. Okay, and the chemical formula of the iron oxide is Fe2O3. Actually these 2 or 3 are indicating about the atoms are present in this formula, but this 2 that is kept here. ठीक है, जो इनके साथ में ये 3 या फिर ये 2 और ये हैं 4, these are showing the number of molecules are present here. तो इसमें होता क्या है कि इसमें ये जो नंबर्स लिखे जाते हैं ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखे जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन की. आपका ये जो प्रोडक्ट बन के आया है ये क्या है, ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. ठीक है, हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट भी इसके साथ में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये आपका आफ्टर रिएक्शन जो वाटर और आयरन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड. ओके, तो आपको पता ही होगा कि जो ये रिएक्शन में पार्ट लेते हैं या जो यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे जाते हैं आपके फॉर्मूलाज या जो भी, तो ये आपके क्या होते हैं, ये सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, और जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है, जो भी सब्सटेंस बन के आता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. तो ये आपके हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स और ये हो गया आपका प्रोडक्ट. ठीक है, तो आई होप आपको ये रिएक्शन भी समझ में आई होगी और मेरा सजेशन है कि इस इक्वेशन को आप अच्छे से लर्न कर ले. many times it is asked in the exams. Okay, so this is the chemical equation for rusting of iron. Prevention of rusting. अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन से हमने क्या देखा कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं. ठीक है, उनकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है. तो उसको क्या करना है कि प्रिवेंशन, हमें कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अडेप्ट करने होंगे जिसकी वजह से हम अपने उन आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचा सके. ठीक है, तो लेट्स सी. फर्स्ट इज कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स विद पेंट और ग्रीस. तो आपने देखा ही होगा कि जैसे ग्रिल लगवाते हैं घर में, या आपने देखा होगा कि घर में खिड़की वगैरह में जो आपका लगता है वो सारी चीजें क्या होती हैं, आयरन की बनी होती हैं. तो उनको रस्टिंग से बचाने के लिए उनको पेंट भी किया जाता है. डोर्स लगते हैं जो, है ना, तो उनको पेंट किया जाता है. लेकिन ये ग्रीस कहाँ पे यूज होता है, ये होता है मशीनरी वगैरह में. ठीक है, मशीन्स होती हैं जो उनमें रस्टिंग से बचाने के लिए और फ्रिक्शन से बचाने के लिए ग्रीस यूज किया जाता है. ठीक है,
तो एग्जांपल्स आपके इसके लिए पेंट और ग्रीस के लिए हो गए मशीन पार्ट्स, टूल्स ऑफ आयरन एंड विंडोज, डोर्स, ओके एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट इज कोटिंग आयरन विद अदर मेटल्स। एक यहाँ पर एक प्रोसेस और भी है कि अगर आपको आयरन ऑब्जेक्ट्स को बचाना है रस्टिंग से, तो आप उसके ऊपर एक अदर मेटल की कोटिंग कर देते हैं, यानी कवरिंग एक अदर मेटल की हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, ओके। एंड द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक और क्रोमियम मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन के लिए या फिर एक आयरन मेटल के ऊपर जो दूसरी मेटल की कवरिंग होती है, वो मेटल्स भी आपकी कौन सी होती हैं, जिंक और क्रोमियम। इन दोनों में से कोई भी एक मेटल की लेयरिंग आप कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, ये प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है, रूफ शेड्स। तो आपने रूफ शेड देखी होंगी, जो छतों पे रहती हैं, वो आयरन की तो बनी होती है, लेकिन होता क्या, उनमें जंग नहीं लगती बिकॉज ऑफ गैल्वेनाइजेशन। देयर इज अ कोटिंग ऑफ जिंक और क्रोमियम मेटल, है ना, ओवर देम। सो दैट्स व्हाई। और बकेट्स का तो आप जानते हैं, बकेट्स जो है वॉशरूम में, बाथरूम में आप हमेशा बाल्टी का यूज करते हैं, और वो बाल्टी आयरन की बनी होती है, लेकिन फिर भी उनमें जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो गैल्वेनाइज्ड हो गई हैं, ठीक है, उनमें गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जिंक की या क्रोमियम की एक कोटिंग की गई है, ठीक है। ड्रम्स होते हैं, ये भी ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन, ओके। सो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम अपने आयरन थिंग्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं, या फिर पेंट और ग्रीसिंग की भी एक कोटिंग की जा सकती है, ठीक है। देयर आर सम अदर मेजर्स दैट वी शुड टेक। सो बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील। अब इसमें क्या होता है कि आयरन जो होता है ये प्योर आयरन होता है, जो आपका ये रस्टिंग होती है वो प्योर आयरन पे ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें क्या करें कि एक कोई अदर मेटल इसमें मिक्स कर दी जाए, ठीक है, तो क्या होता है, जो स्टील होता है वो आपका एक मतलब मिक्सचर है मेटल्स का। तो जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलॉय, ठीक है। तो ये कैसे होता है, मोल्टेन आयरन इज मिक्स्ड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम एंड निकल टू मेक स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो बर्तन हम घरों पे यूज करते हैं, थाली, प्लेट, ग्लास वगैरह, तो ये क्या है, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और इनमें आपने देखा होगा कभी भी रस्टिंग नहीं होती, कभी भी जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सम अदर मेटल्स आर मिक्स्ड विद द आयरन, ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन, देखिए कार्बन आपका क्या है, ये मेटल नहीं है, ठीक है, लेकिन अदर इसमें मेटल है, जैसे क्रोमियम हो गया, है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, उस जो इस तरह से मिक्सचर बनाते हैं मेटल और नॉन मेटल का, या फिर मेटल मेटल का, तो ये एलॉय बन जाता है। जो एक अदर सब्सटेंस बन के आता है वो क्या होता है, वो एलॉय होता है। तो आपका जो स्टेनलेस स्टील होता है वो इनके थ्रू बनता है, जिसकी वजह से उनमें रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं आपके स्टेनलेस स्टील के, हो गए जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है, नाइफ्स यानी चाकू हो गई, कैंची हो गई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो स्टील के बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड है आपके आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 3 प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में हमने बात की है, दैट वी कैन यूज टू प्रिवेंट आवर आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग। Next topic is browning of fruits and vegetables. So for this topic we have taken here 2 images. In first image you can see there is a cut apple, there is a piece of cut apple, okay। तो first apple piece में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्रेश पीस लग रहा है, इसमें कोई भी ऐसा आपको कुछ अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है। लेकिन जो आपका नेक्स्ट पीस, इसमें आप देखिए ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, दैट्स वाई ये किनारों से थोड़ा आप देख रहे हैं कुछ सिकुड़ सा रहा है, और इसमें ब्राउनिंग हो गई। ब्राउनिंग मतलब यहाँ पे आप इसका कलर देखिए, इसकी कंपेरेटिवली ये क्या है, डार्क कलर हो गया है। तो जो डार्क कलर इस तरह से आ जाता है कट सरफेसेस पे, जो कुछ डिपोजिशन हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स।
ये आपकी कुछ वेजिटेबल्स देखिए, सर्टेन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शो ब्राउनिंग। ओके, तो जैसे फ्रूट्स की अगर बात करें तो बनाना भी है, ठीक है, बनाना हो गया, उसकी कट सरफेस पे भी आप ब्राउन लेयर देखेंगे। आपका आता है पियर होता है, पियर में भी देखेंगे। तो इसी तरह से कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं जो आपका ब्राउनिंग शो करती हैं, जैसे कि ये है आपका ब्रिंजल पीसेज है। देखिए ये ब्रिंजल पीसेज है, ये फ्रेश है और ये थोड़ा सा दे आर केप्ट सम फॉर सम टाइम टू एक्सपोज एयर। ओके, तो यहाँ पर एयर के जब आते हैं टच में तो ये क्या होता है, इनका कलर ब्राउन हो जाता है, और जैसे जैसे टाइम ज्यादा बीतेगा तो ये ब्लैक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो we will discuss about browning of fruits and vegetables in detail in next slide. So let's see what is browning of fruits and vegetables. When we keep peeled potatoes in air, okay, after some time we find them brown in color. ठीक है, पील्ड पोटैटो यानी छिला हुआ आलू अगर आपने रख दिया है या कटे हुए आलू रख दिए हैं तो क्या होगा, उनपे ब्राउन कलर का कुछ डिपोजिशन हो जाएगा, उनका कलर ब्राउनिश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, वाई देयर कलर चेंजेस टू ब्राउन, इनका कलर ब्राउन में चेंज क्यों हो जाता है? पहले तो जब काटते हैं तो कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, लेकिन अब बाद में कैसा हो जाता है, ये हो जाता है आपका कलर चेंज। तो क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको शायद पता होगा कि जो कोई भी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो सब्सटेंस प्रेजेंट है फ्रूट्स में, उस सब्सटेंस के साथ या जो केमिकल प्रेजेंट है एक तरह से एसिड्स वगैरह जो प्रेजेंट है उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक अदर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से वो उसका कलर ब्राउन होता है। ठीक है, एक तरह से डिपोजिशन उसी सब्सटेंस का हो जाता है ओवर द कट सरफेस। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज द स्किन ऑफ फ्रूट्स एक्ट एज अ बैरियर फ्रॉम द surrounding air, but when the skin is either cut or broken, cell wall get ruptured and an enzyme present in them react with the oxygen in the air. तो जो अगर फ्रूट्स की बात करें तो उनकी जो आउटर लेयर होती है ये क्या करती है, एक तरह से बैरियर का काम करती है। बैरियर मतलब एक तरह से रुकावट है या एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है, मींस एनी अदर सब्सटेंस कैन नॉट एंटर द फूड अंडर द फ्रूट। फ्रूट के अंदर कोई भी ऐसे सब्सटेंस नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ द स्किन ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो ये एक तरह से बैरियर का वर्क करती है। लेकिन अगर ये स्किन इसकी काट दी जाए या किसी तरह से भी ब्रोक हो जाए, रप्चर्ड हो जाए, तो उसमें होता क्या है, इसमें जो है जो अंदर वाली लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, एयर के साथ में कांटेक्ट में आ जाती है। तो होता क्या है कि जो वहां पर फ्रूट में कोई भी एंजाइम जो प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और होता क्या है, एज द रिजल्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स टर्न ब्राउन और लीड्स टू चेंज इन फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, जब वो एंजाइम रिएक्ट करता है एयर के साथ तो क्या हो जाता है, ब्राउनिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक इसका जो इफेक्ट होता है ब्राउनिंग का, वो क्या करता है, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट से उस फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो उसमें लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है। अगर हम कहें एप्पल बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है ना, ईट एन एप्पल इन अ डे, तो आप एक दिन में एक एप्पल खाएं, लेकिन अगर आपने उसको काट के रख दिया है कुछ देर के लिए और फिर खा रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाएगी। आपके उसमें जो विटामिन या मिनरल्स हैं जो आपको वो कम मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, तो ब्राउनिंग का ये इफेक्ट होता है। ठीक है, द लॉन्गर दे एक्सपोज्ड टू एयर लेसर विल बी द विटामिन। जितनी ज्यादा देर अगर
एयर के साथ ये कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसे एक्सपोज रहेंगे, खुले रहेंगे, एयर में कटे हुए रखे रहेंगे, तो क्या होगा, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू घटेगा और उनकी विटामिन जो है लेस हो जाएंगे, यानी कि विटामिन कम हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ अदर सब्सटेंस फॉर्म कर लेंगे। ओके, तो ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या करती है, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम करती है, यानी कि वो उतने ज्यादा फायदेमंद नहीं रहते हैं अगर आप उनको काट कर रखते हैं और फिर खाएं तो। ठीक है, इसलिए आप उनको क्या करें, ताजा ताजा ही काट कर खाएं। ठीक है, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। Some ways to prevent fruits and vegetables from getting oxidized। जैसे हमने क्या देखा कि रस्टिंग ऑफ आयरन के कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे, कुछ प्रिवेंशंस हैं जो हम ले सकते हैं उनको रस्टिंग से बचाने के लिए। उसी तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रस्टिंग से बचाने के लिए या इनकी जो ब्राउनिंग होती है उससे बचाने के लिए कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं। क्या? फ्रूट्स सच एज बनाना, एप्पल, avocado, pears, and vegetables like potato, sweet potatoes can be brushed directly with lemon juice। ठीक है, अगर आपने इन फ्रूट्स को काटा है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप आउटर लेयर है, स्किन है उनकी, तब तक तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने उनको छील दिया, काट दिया, फिर ठीक है, तो क्या करेंगे आप उनको ब्राउनिंग से बचाने के लिए लेमन जूस को एक लेयर उसके ब्रश के थ्रू उस पर धीरे धीरे एक लेयर बना देंगे, कट सरफेसेस के ऊपर लेमन जूस को अप्लाई कर देंगे। तो ये लेमन जूस क्या करेगा, ये एयर के साथ कांटेक्ट को रोक देगा, डायरेक्ट एयर इनके कांटेक्ट में, कट सरफेसेस के कांटेक्ट में डायरेक्ट एयर नहीं आएगी, जिससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, तो ब्राउनिंग भी रुक जाएगी। क्लियर, क्योंकि एयर उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सोकिंग द कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन प्लेन वाटर, या फिर आप जो कटे हुए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनको प्लेन वाटर में डुबो कर रख सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से पानी में डूबे रहें। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी इनका हिस्सा एयर के कांटेक्ट में आ गया, यानी कि अगर वाटर पूरी तरह से नहीं डाला गया, थोड़ा सा हिस्सा वाटर से ऊपर रह गया, तो वो उतना हिस्सा भी ब्राउनिंग हो जाएगी। क्लियर, सो प्लेन वाटर वर्क्स वेल टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा इसमें भी, लेकिन उसको क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, या फिर जब उसके ऊपर, वाटर के ऊपर कोई लेयर, जैसे हमने क्या पीछे देखा कि अगर ऑयल की लेयर कर देते हैं तो वो ऑक्सीजन की एंट्री बंद कर देता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने इसके ऊपर कोई लेयर इस तरह की नहीं बनाई है, तो ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर कर सकती है, तो धीरे धीरे ब्राउनिंग होगा। ये क्या कर देगा, ब्राउनिंग की जो प्रोसेस है उसको धीमा कर देगा। ठीक है, तो द लेयर ऑफ वाटर लिमिट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल सरफेस। ठीक है, कर देगा, एंट्री देगा, लेकिन क्या होगा, इस प्रोसेस को धीमा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो बी डन बाई कुकिंग और एडिंग सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, अच्छा, प्रिजर्वेटिव्स तो हम यूज तब करेंगे ना जब हमको ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए इनको रखना हो, तो अदरवाइज ये दो ऊपर के जो प्रोसेस हैं या जो दो स्टेप्स हैं वो हम ले सकते हैं अगर थोड़ी देर के लिए हमें करना है। ठीक है, और तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमारा ये आता है कि अगर हम कोई भी इस तरह से, जैसे आलू है या बैगन है, इस तरह का अगर हमने बनाया है, तो हमें इनकी ऑब्वियसली सब्जी ही बनानी होगी, तो उनको काटने के बाद तुरंत पकाने के लिए रख देना चाहिए। ठीक है, और फ्रूट्स हो गए तो उनको तभी काटे जब आपको खाना हो। अगर ऐसा कुछ है कि जैसे लंच में या टिफिन में काट के आपको ले जाना जरूरी है, तो फिर आप उसके ऊपर लेमन जूस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, so these are some preventive measures that should be taken to prevent the vegetables and fruits from browning. Okay, now third topic is reaction between vinegar and baking soda। ठीक है, विनेगर हमें पता है सिरका होता है, सिरका, ठीक है, जो नॉर्मली घर पे यूज होता है, कुछ भी आप बनाते हैं घर पे, कुकिंग में ये यूज हो जाता है कई बार। ठीक है, ये थोड़ा सा खट्टा होता है, टेस्टी। आपको पता है विनेगर में कौन सा एसिड होता है, आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, इसमें एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा एक पाउडर होता है जो केक वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनके बीच की रिएक्शन। सो विनेगर एंड बेकिंग सोडा आर कॉमन केमिकल्स यूज्ड एट होम्स।
ठीक है, घरों पे कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। व्हेन दीज टू सब्सटेंसेस रिएक्ट, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है, इज ऑब्जर्व। और एफरवेसेंस होते हैं जो बुलबुले, ठीक है, और ब्रिस्क मतलब तेजी से बुलबुले जो उसके अंदर से निकलते हैं। जब ये बेकिंग सोडा और विनेगर जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो क्या करते हैं, उसमें से बुलबुले से निकलते हैं, ठीक है। तो वो क्या शो करते हैं, इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। वो जो आपने देखा कि एक लिक्विड है विनेगर और जो बेकिंग सोडा है वो सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होता है। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। तो बबल्स ऑब्वियसली गैस के ही होंगे ना। तो जो गैस अगर बन रही है तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हो गया ना। और वो आपका न्यू सब्सटेंस होता क्या है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ओके, सो दैट्स और रिएक्शन कैसी होती है, इरिवर्सिबल। दैट मीन्स यू कैन नॉट गेट बैक योर सब्सटेंसेस इन ओरिजिनल फॉर्म बैक। ओके, आप बेकिंग सोडा को और विनेगर को वापस पहले जैसा उसमें से नहीं निकाल सकते, उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल हो गई। और क्या है आपकी ये इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इसमें से बाहर निकल रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी में क्या आप कर सकते हैं। एक्टिविटी में आप करेंगे ये कि आप लेंगे 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इन 2 टेस्ट ट्यूब में एक में तो आप इस तरह से कॉर्क लगाएंगे। इस कॉर्क के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरह से ट्यूब डालेंगे जो दोनों टेस्ट ट्यूब में इस तरह से रखी जाएगी, इस तरह से ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, विनेगर एंड बेकिंग सोडा, दोनों चीजें ली है, ठीक। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या, इसमें से गैस बनेगी जो बुलबुलों के रूप में इस टेस्ट ट्यूब से होती हुई, इस टेस्ट ट्यूब से होती हुई, सॉरी, इस ट्यूब से होती हुई इस टेस्ट ट्यूब में एंटर कर जाएगी यहाँ पर। जब ये इस टेस्ट ट्यूब में एंटर करेगी तो यहाँ पर हमने पहले से ही क्या लिया हुआ है, लाइम वाटर लिया हुआ है। इस नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, लाइम वाटर, जिसको बोलते हैं चूने का पानी, ठीक है। इस लाइम वाटर, और जो ये लाइम वाटर आपका होता है बिल्कुल वाटर की तरह होता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल, ठीक है। As the carbon dioxide gas entered in this lime water in the form of bubbles, it makes a new substance, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जिसकी वजह से ये आपका जो लाइम वाटर है इट टर्न्स मिल्की। पहले क्या है आपका बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कलर है इसका, लेकिन अब क्या हो गया, मिल्की हो गया, ये कुछ दूध जैसा कलर इसका दिखने लगेगा। तो यहाँ पर भी एक न्यू सब्सटेंस बन गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट जो एक्टिविटी हमने यहाँ पर शो की है उसका एक रीजन सिर्फ यही है कि वी जस्ट वांट टू से देयर इज अ reaction between vinegar and baking soda is a reaction is a chemical change, because here it is a formation of new substance that is carbon dioxide gas। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कर दिया है। तो लाइम वाटर जो है मिल्की हो गया, जिससे प्रूव होता है जो गैस यहाँ पर बनी इस रिएक्शन में वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले प्रूव किया जा चुका है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास की जाती है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे प्रूव करता है कि इस रिएक्शन में, रिएक्शन जो विनेगर और बेकिंग सोडा की है, इसमें क्या बन रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये एक आपकी क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को कई बार देखकर भी क्लियर कर सकते हैं अगर कोई डाउट रह जाता है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and I hope you like this video, and this video enhance your knowledge. It will add some more in your knowledge. So thanks for watching. We will meet in next video. Till then,
Be safe, be happy. Bye bye.